مہمان آ چکے تھے جنہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تو راب خان مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ملازمہ کو بھیجا کہ وہ نور بیگم سے بولیں کہ مہمان آ چکے ہیں اور نوال کو لے کر آ جائیں۔ ان کے کہے کے مطابق ملازمہ نور بیگم کو بول آئی تھی اور اب 5 منٹ بعد ہی نور بیگم آئلہ ایمل نوال کو لیے نیچے آ گئیں۔ اسے نہ زیور پہنا تھا اور نہ ہی تو راب خان کے دیے ہوئے کپڑے، بس اس نے اس سوٹ میں لال دوپٹہ اوپر اوڑھ لیا تھا جو اسے کفن کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ جس سرخ جوڑے کو پہننے کے لیے وہ بے چین تھی، آج اسی سرخ دوپٹے میں منہ چھپانا اسے اپنی قبر میں گھسنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بے بس تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے آنسو بہانے کے، مگر نوال کی آنکھیں تو جیسے خشک ہو گئی تھی، چہرہ بے تاثر تھا، وہ بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ کیا ہو رہا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اسے کچھ پتا نہ تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں اور بھابھیوں کے ساتھ بے جان قدموں سے گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں ابھی داخل ہوئے تھے جب پیچھے سے جزلان کی آواز آئی، جس پر وہ سب ایک ساتھ پلٹے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ بہت ہی سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ماتھے پر بے تحاشا بل ڈالے سامنے بیٹھے شخص کو گھورنے لگا۔ دیکھنے میں وہ کوئی بدمعاش لگتا تھا جو یقیناً دلہا تھا۔ ارے آؤ جزلان، تمہارا ہی انتظار تھا، کتنے فون کیے میں نے تمہیں، مگر تم نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ خیر چھوڑو، یہاں آؤ اور ان سے ملو۔ یہ ہے میرے دوست وقاص اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا عادل، اور یہ عادل کی ماں ہے۔ تو راب خان نے جزلان کو دیکھتے سکون سے ان لوگوں کا تعارف کروایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ ایسے کیسے یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہ مولوی صاحب اور نوال کیوں اس طرح سے گھونگھٹ؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھے، اس لیے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نوال کا نکاح ہے آج عادل سے، اور تم لوگ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، اندر لے کر آؤ نوال کو۔ جزلان کو بتانے کے بعد ڈرائنگ روم کی دہلیز پر ان لوگوں کو کھڑے دیکھ کر وہ بولے تو سب ایک بار پھر امید سے جزلان کی جانب دیکھتے اندر قدم بڑھا گئے۔ نکاح کا سن کر جزلان چونک گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنی بہن کی جانب دیکھا، جس کا گھونگھٹ کے پیچھے مرجھایا ہوا چہرہ اور سوجی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ یہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے۔ اس نے کسی کی بھی جانب نہیں دیکھا۔ نکاح کا سن کر جزلان چونک گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی بہن کی جانب دیکھا، جس کا گھونگھٹ کے پیچھے مرجھایا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ یہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے۔ اس نے کسی کی بھی طرف نہیں دیکھا تھا، بس نوال کو دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے امید بھری نظر سے دیکھے، جیسے وہ رائت سے بات کرتی تھی، اسے اپنی پریشانی بتاتی تھی۔ اس کا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بھی اپنی پریشانی بتائے، مگر بغیر نوال اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گئی۔ جزلان کا دل ایک دم درد سے بھرا تھا۔ مطلب اس کی بہن کو اس پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ جزلان کے دل میں ایک دم درد اٹھا۔ مطلب اس کی بہن کو اس پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس سے مدد ہی مانگ لیتی، اسے ایک بار کہہ ہی دیتی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو جزلان یہ نکاح کبھی نہ ہونے دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہنا تو دور، ایک نظر جزلان کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جزلان نے کب اس کا ساتھ دیا تھا، کب اس سے پیار سے بات کی تھی، کب اپنے بھائی ہونے کا احساس دلایا تھا اسے جو وہ اس سے کوئی امید لگا بیٹھتی، مگر جزلان تو بھائی تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی بہن کا درد محسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا صرف رائد ہی اس کا نکاح حسام سے کروانا نہیں چاہتا، بلکہ نوال خود بھی حسام سے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ محبت کرتی ہے اس سے۔ وہ سن چکا تھا نوال اور نور بیگم کی باتیں۔ اسے جب بھی دکھ ہی ہوا تھا کہ وہ جزلان سے بات کرنے کی بجائے رائد سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس نے تو کبھی بھائیوں جیسا کوئی مان اسے دیا بھی نہیں تھا، تو وہ پھر کیوں اس سے بات کرنے کا کہتی۔ مگر اب تو وقت تھا نا، وہ اس کا بھائی بن کر اس کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اسے اس کی محبت دلانے کے لیے آواز اٹھا سکتا تھا، اس کا یہ زبردستی کا نکاح روک سکتا تھا، جب نہ صحیح مگر اب تو وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا نا۔ رکو نوال۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ نوال کو صوفے پر بٹھاتے، جزلان لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ بابا، نوال کی شادی طے ہو چکی ہے، آپ اس کا نکاح اس طرح کسی اور سے کیسے کرنے جا سکتے ہیں؟ جزلان کے کہے گئے الفاظ پر جہاں آئلہ ایمل نور بیگم اور نوال کو یقین نہیں آیا، وہیں تراب خان بھی بری طرح سے حیران ہوتے سیدھے ہوئے تھے۔ تراب، یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا بیٹا؟ ان کے دوست نے ناسمجھی سے تراب صاحب سے پوچھا، جبکہ ان 4 خواتین کو ایک امید کی کرن دکھی تھی۔ جزلان، تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ نوال کی شادی جہاں طے کی ہے وہ ہماری دشمن ہے۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتے، جزلان نے ان کی بات کاٹی۔ بابا، کوئی دشمن نہیں ہے وہ ہمارے، بس آپ نے ہی انہیں دشمن مانا ہوا ہے، ورنہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ جزلان کو حیدر شاہ
के हक में बोलते देख तो राब खान का पारा हाई होने लगा था। आप लोग नवाल को लेकर कमरे में जाएं। जुजलान ने एक नज़र बेयकीनी से खुद को देखती नवाल को देखकर बोला तो आयला ने जल्दी से नवाल को बाजू से थामा और जाने लगी, मगर उससे पहले ही तुराब खान की गरजदार आवाज़ गूंजी, कहीं नहीं जाएगी नवाल, आज इसका निकाह है और ये निकाह होकर रहेगा। तो राब खान बेहद सख्ती से बोले और एक पल को नवाल कांप उठी थी। कोई निकाह नहीं होगा यहाँ पर, आप लोग जा सकते हैं। जुजलान तो राब खान को देखते लड़के वालों से बोला तो वो लोग गुस्से से उठ खड़े हुए। तो राब खान, तुम्हारे बेटे ने तो हमारी दोस्ती की भी लाज ना रखी। उनके दोस्त गुस्से से बोले, अंकल अगर आपकी बेटी की शादी पहले ही तय हो चुकी थी तो क्या ज़रूरत थी हमें बुलाकर बेइज्जत करने की। हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जो आप लोगों ने यूं घर बुलाकर हमारी बेइज्जती कर दी। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूँगा। चलें डैड। वो लड़का दरुस्तगी से धमकी देता गले में पहना फूलों का हार तोड़ते ड्राइंग रूम से निकल गया। उसके पीछे उसके माँ बाप और मौलवी साहब भी बाहर निकले तो नवाल को जैसे सुकून आया। ये सब इसकी वजह से हुआ। इसने अपनी मनहूसियत का जादू तुम पर भी चला दिया, तुम्हें भी अपनी तरफ कर लिया। पहले एक बेटे को तो मेरे सामने खड़ा कर ही दिया था, मगर आज मेरे दूसरे बेटे को भी मेरे सामने ला खड़ा किया, मेरे खिलाफ भड़का दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, इसकी तो जान ले लूंगा मैं आज। तो राब खान होश खोते नवाल पर हाथ उठाने ही वाले थे जब उनका उठता हुआ हाथ जुजलान ने रोका। बस बाबा, इसने किसी को आपसे दूर नहीं किया, बल्कि सारी ज़िंदगी हमने इसे खुद से दूर रखा है, मगर कभी इसने कोई शिकायत नहीं की। और आज अगर ज़रा सा मैं इसके लिए खड़ा हो गया तो आप अपना आपा ही खो बैठे हैं। उनका हाथ नीचे करते जुजलान दांत जमाई सर्द लहजे में बोला, जिस पर तुराब खान ने सर झटका। जुजलान की बातों पर जहाँ नवाल की आंखों में खुशी तैरी, वहीं नूर बेगम नम आंखों से मुस्कुरा दी। काफ़ी देर से ही सही, मगर उनके बेटे को अपनी बहन का ख्याल आ ही गया था, यही उनके लिए काफ़ी था। राइत की तरह मेरे सामने ये बयान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें जुजलान खान, और तुम जितनी जल्दी हो सके ना इसे यहाँ से चलता करो, क्योंकि मैं इस मनहूस को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार फिर अपने लफ्ज़ों के नश्तर चलाते नूर बेगम को दो टोक लहजे में कहते, एक तेज़ नज़र नवाल पर डालकर वो ड्राइंग रूम से ही बाहर निकल गए। आप लोग नवाल को कमरे में लेकर जाएं, मैं देखता हूँ इन्हें। जुजलान सर झुकाए आंसू बहाती नवाल को एक नज़र देखता उन सब पर नज़र दौड़ाता तुराब खान के पीछे लपका, मेरी बच्ची रो क्यों रही है, अब तो सब ठीक हो गया है ना। नूर बेगम ने आगे बढ़कर उसका घूंघट उठाते उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थामा। मामा, बाबा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैंने क्या किया है, मैं इस दुनिया में आई, इसमें मेरी क्या गलती है। भीगी आंखों से भारी होती आवाज़ के साथ मासूम सा सवाल पूछा तो नूर बेगम जब्त करती ढेरों आंसू अपने अंदर उतार गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नवाल, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बेटियों की कदर नहीं होती, जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा होता है, मगर वो उसकी रहमत की नाशुक्री करते हैं। यकीन मानो ऐसे लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं जो अपनी बेटियों का दिल दुखाते हैं, जबकि बेटी तो घर की रौनक होती है। आयला ने प्यार से कहा तो वो गहरी सांस भरकर नम आंखों से उसे देख कर रह गई। नवाल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा कि तुम्हें तुम्हारा दूसरा भाई भी मिल गया, और रहे ताया अब्बू तो अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। एमल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जिस पर वो फीका सा मुस्कुरा दी। किसी को भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जुजलान अपनी बहन के लिए खड़ा हुआ था। एमल को तो उस पर शक हो रहा था कि ज़रूर उसने अपने मतलब के लिए ये सब कुछ किया होगा, वरना वो इतना अच्छा तो नहीं था कि बहन की मोहब्बत एकदम से उसके दिल में जाग उठती। मगर अभी वो ये सारी बातें सोचना नहीं चाहती थी। वो खुश थी कि भले जैसे भी सही, लेकिन नवाल का निकाह रुक गया था। रात के 10 बज रहे थे और एमल अभी नवाल के कमरे से उसके साथ खाना खाने के बाद अब अपने कमरे में आई थी। कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नज़र टी शर्ट और ट्राउज़र पहने बेड पर बैठे जुजलान पर गई। दरवाज़ा बंद करती सीधी वो उसकी जानिब आई और दोनों हाथ सीने पर बांधे उसके सामने खड़ी होती जांचती नज़रों से उसे देखने लगी। जुजलान जो लैपटॉप गोद में रखे उस पर कुछ देखने में मसरूफ़ था। एमल की मौजूदगी महसूस करते उसने नज़रें उठाकर देखा तो एमल को खुद की तरफ ही तकते पाया। उसने एक आईब्राउ उचकाई जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ, आज जो तुमने नवाल के लिए किया उसके पीछे क्या मकसद था तुम्हारा। एमल ने आंखें छोटी की एक चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। मुझे पता है इस तरह से अचानक मेरा एमल ने आंखें छोटी की एक चुपते लहजे में इस्तफसार किया मुझे पता है इस तरह से अचानक मेरा नवाल की तरफदारी करना, उसके लिए बाबा से लड़ना तुम्हें शक में मुब्तला कर रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ये सब अपने किसी मकसद के लिए नहीं किया। जैसे अब तक राइद नवाल की ढाल बनता रहा,
और जिस तरह नवाल राइत के करीब हो रही, मुझे बुरा लग रहा था। वो मेरी बहन है मगर मुझसे कभी कुछ नहीं कहती, और वो कहती भी कैसे? मैंने कौन सा कभी उसे अहमियत दी थी जो वो कुछ कहती? मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था नवाल का यूं राइत को अहमियत देना। और आज जब राइत नहीं था तो नवाल कितनी अकेली हो गई थी। मगर सिर्फ राइत ही तो उसका भाई नहीं है ना, मैं भी तो हूँ। मुझे भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। बस इसीलिए मैंने वही सब किया जो मुझे करना चाहिए था। जुज़लान ने ज़रा से कंधे उचकाकर उसे तफसील से आगाह किया, जिस पर एमल ने दाद देती नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी स्पीच अच्छी थी मगर मैं फिर भी मुतासिर नहीं हुई, एमल ने मजाक उड़ाते लहजे में कहा, जिस पर जुज़लान लैपटॉप साइड पर रखता उसके सामने उठ खड़ा हुआ। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी मगर ये सच है। सबने मिलकर मुझे जो हकीकत का आईना दिखाया है ना, इसमें मुझे अपना वजूद बहुत गंदा दिख रहा है जिसे मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जुज़लान धीमे लहजे में बोला तो एमल के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आई। कोई आंखों देखी मक्खी नहीं निकलता जुज़लान खान। तुमने इतना सब कुछ किया है कि अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मुझे यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं। कौन सा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ सारी? कौन सा मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ? चंद दिन की ही बात है, फिर मुझे तुमसे खुला लेने से कोई नहीं रोक सकेगा, खुद तुम भी नहीं। एमल मुस्कुराते लहजे में कहती, फिर से खुला की बात करके जुज़लान को गुस्सा दिला गई। एमल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, मेरे सामने खुला की बात मत करना वरना मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। जुज़लान उंगली उठाता सख्ती से वार्न कर रहा था उसे, जिस पर एमल ने सर झटका। बर्दाश्त तो अब मेरी जवाब दी गई है। मुझसे पूछो कि कितना मुश्किल होता है अपने बाबा के कातिल के साथ रहना। एमल उसकी गुस्से से सुर्ख आंखों में अपनी सियाह सर्द आंखें गाड़े एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली तो जुज़लान उसे कमर से थाम कर खुद से लगा गया। छोड़ो मुझे। उसे खुद के साथ लगाने पर वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी अपनी कमर से। एमल प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार, जुज़लान ने बेचारगी से कहा, मगर एमल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। जुज़लान मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश में एमल धमकियां में इस लहजे में बोली तो वो एकदम उसके चेहरे पर झुक गया था। काफ़ी देर जब वो पीछे ना हुआ तो एमल को लगा कि अगर वो पीछे ना हुआ तो उसका सांस बंद हो जाएगा। उसकी मध्यम सांसों को महसूस करते जुज़लान नरमी से पीछे हुआ, जिस पर एमल लंबे लंबे सांस लेती बेख्तियार उसके सीने पर सर टिका गई, जिस पर जुज़लान ने मुस्कुराते हुए अपने कमर पर बंधे हाथ छोड़े और धीरे से उसका सर सहला तो वो उसे समझने का मौका दिए बगैर एक झटके से उसको धक्का दे गई। इस हमले की तवक्को जुज़लान को बिल्कुल ना थी, तभी वो पीछे बेड पर जा गिरा। जुज़लान खान, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी थोड़ी सी कुर्बत से बहक जाए, जो तुम्हारा खूबरू चेहरा देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे इस खूबरू चेहरे के पीछे छुपा तुम्हारा असल मकरू चेहरा देखा है, इसलिए मेरे साथ ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचना आंदा। एमल आंखों में शोले लिए चीख कर कहती वॉशरूम में बंद हो गई। पीछे जुज़लान उसके सख्त लफ्ज़ों पर बेबसी से सर थाम गया। वो उसकी नज़रों में इतना गिर चुका था कि अब शायद ही उठ पाता, मगर वो फिर भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था एमल के दिल में जगह बनाने की। लेकिन ये तो अब वक्त नहीं बताना था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता भी है या नहीं।